अवैध बांग्लादेशियों के घुसपैठ टेलीविजन इतिहास का सबसे बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया है। हमारी अंडर कवर टीम ने अपनी जान को जोखिम में डालकर यह सच्चाई आप सबके सामने लेकर आए हैं। आज हम आपको भारत बांग्लादेश बॉर्डर की वो सच्चाई दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे देश के गद्दार देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर सबसे बड़े खेल का इंडिया डेली बड़ा खुलासा कर रहा है। इंडिया डेली की अंडरकवर टीम ने अपनी जान को जोखिम में डालकर बॉर्डर का सच आपके सामने रख रहा है। इस सच्चाई को जानने के लिए हमारी टीम सीधा भारत बांग्लादेश के अलग अलग बॉर्डर पर पहुंची और वहां चल रहे खेल को अपने खुफिया कैमरे में कैद किया। आज हम आपको जो अपने इस ऑपरेशन बॉर्डर में दिखाने जा रहे हैं वो वाकई हैरान करने वाला है। आज आप जान जाएंगे कि कैसे बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ की जाती है, कैसे अलग अलग रास्ते के जरिए घुसपैठिए भारत में दाखिल होते हैं। ये बांग्लादेशी घुसपैठिए नदी के जरिए भारत की सीमा में घुसते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि केले के पेड़ के जरिए भी ये घुसपैठ करते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये साफ साफ कहते हैं कि अगर इस दौरान जान चली जाए तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। इतना ही नहीं, इस जोखिम भरे काम के लिए ये मोटी रकम वसूलते हैं। इसके लिए आपको भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर दलालों की भरमार मिल जाएगी। सोचिए कैसे देश के गद्दार देश से गद्दारी करने के लिए कुछ भी करने पर आमादा हैं। देखो আমার ব্যাপার হচ্ছে যে আমি তুমি যে কোনো রাস্তায় তুলে দিতে পারো। রাস্তায় তুলে দিলে ধরো তুমি জয়ন্তীপুরে এনে দিলে আমি জয়ন্তীপুর থেকে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আমার, মানে যে কোনো রাস্তায়, ঠিক আছে। আমি প্রথমে নান্তদাকে ফোন করেছিলাম, অ্যাকচুয়ালি আমি এখানে থাকি না, আমি এখন কলকাতায় থাকি, বাবা মারা গেছে, সেই জন্য এসেছি। তা কাকা বলল যে হচ্ছে যেভাবে হোক মনটাকে একটু নিয়ে এসে দেখি স্কুলে ভর্তি টর্তি করার ব্যাপার করে দিতে হবে। একাই আসবে। এখন আমার হাতে আছে ধরো 2 জন 3 জন 5 জন 6 জন, ঠিক আছে। যদি সেরকম হয় তুমি আমাকে ক্লিয়ার কাট বলো, তাহলে সেইভাবেই হবে, ঠিক আছে। কত কি লাগবে ঠিকঠাক বলো, এবং এবং জলে মলে ফেলো না যেন। জল দিকে নৌকা টোকা দিতে পারে, নৌকা দিলে জলে টলে ডুবে যাবে সেরকম লাইন না না, ডুবে যাওয়া না, মেয়ে মানুষ তো জলে সাঁতার ফাতার দিতে পারবে না, ই করতে পারবে না। একটু চা হবে না, আসলাম এত দূর, আমি সে গাড়ি নিয়ে এসে ঘুরে বেড়াচ্ছি, শুধু গাড়ি ওই পাশে রেখেছি। এবার নাম্বারটা নিয়ে যাও না, আমি তোমার হচ্ছে ওই এর কাছ দিয়ে নিয়ে আসলাম নম্বর, তোমার বৌদির নম্বরই বোধহয় দিল, তোমার নম্বর নেই। আচ্ছা একটা কথা গেল, এবার টাকা কত কি লাগবে সেটা বলো। ওই ইন্ডিয়ান 14,000, বাংলা দিলে 20,000 টাকা খরচ। বাংলা কার কাছে দেবে? যদি মনে করো যে বাংলাদেশ থেকে বাংলা টাকা দেবে, বাংলা টাকা মানে যে ওখান থেকে পাঠাবে, তাই তো? আচ্ছা, যদি মনে করে বাংলাদেশ থেকে দেবে তাহলে বাংলা 20,000 টাকা খরচা, আবার ইন্ডিয়ান দিলে 14,000 টাকা খরচা। 14,000 টাকা খরচা। মোটামুটি কোন টাইমটাই মানে এখন লোকজন যা আসা যাওয়া করছে, সব দিনের বেলায় কোনো কাজ হচ্ছে না, যা হচ্ছে সন্ধ্যের পর, সন্ধ্যের পরে। ওই বিকেলের দিকে, ওইখানে বিকেলের দিকে দিয়ে দিল, বিকেলে দিল কি সকালে দিলে ওরা রেখে দেবে, আমার যে লোক আছে ওরা রেখে দেবে। এবার সন্ধ্যেবেলা পার করবে, ওই সন্ধ্যে পরে পার করে, এবার রাত্রি এসে পার হয়ে চলে আসে, এসে যে ঘাটে ওঠে ওইখানেই রাখে, রাত্রিবেলা ওইখান থেকে ছাড়ে না, এবার সকালবেলা আমার কাছে বুঝতে। এবার 2 জন মুসলিম আছে তার মধ্যে, ঠিক আছে। সেটা ওই হচ্ছে যে আমাদেরটাও যদি করে দাও তাহলে একবারে হয়ে যায়। তো মুসলিম 2টো মেয়ে আছে, ঠিক আছে। সব কি একই খরচা পড়বে? একই খরচ। ইন্ডিয়ান 14,000 টাকা করে। মোটামুটি তোমার এদিকে তোমার কত দূর? ধরো আমি নেই, বনগায় তুলে দেবো, তাই তো। 14,000 টাকা করে, যে কয়জন আসবে সব ওই একই। বনগা ফোন করে, এবার যদি বলে যে না বারাসাত হাবড়া দিয়ে আসতে হবে,
তাহলে ওখানে খরচা বেশি লাগে তার। না না, ওসব নিয়ে চাপ নেই, ওসব নিয়ে চাপ নেই। আর হচ্ছে এমনি যারা ওই এখানে ভোটার কার্ড ফার্ড বানাচ্ছে এরকম ধরনের জানাশোনা আছে যে তুমি তো শোন, তুমি করবা কেন? আমি বলছি যে ধরো যারা আসছে টাসছে একটু কম বেশি তো যোগাযোগ আছে, যে দেখা গেল শোনো আমি হচ্ছে আমাকে তুমি চিনতে। हमारी अंडरकवर टीम ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर और उससे सटे गांव में जाकर इसकी पूरी पड़ताल की और सब कुछ खुफिया कैमरे में कैद किया। बॉर्डर पर कैद एक एक तस्वीर तस्दीक करने के लिए काफी है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ ये बड़ा खेल कर रहे हैं। सरहद, साजिश और सेंध, इसी का बड़ा खुलासा इस ऑपरेशन बॉर्डर में हमारी अंडरकवर टीम ने किया है, इंडिया डेली ने किया है। सच्चाई आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं और जैसा कि पहले बताया कि कल से ही हम इस खबर को जो है वो दिखा रहे हैं, इस स्टिंग ऑपरेशन को दिखा रहे हैं जिसमें जान जोखिम में डाल करके हमारी अंडरकवर टीम ये सच्चाई आप सबके सामने लेकर के आई है। और इसी पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए, डिबेट करने के लिए हमारे साथ सभी मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं। उनसे हम आपका तारुफ करा देते हैं। प्रदीप सिंह है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका हमारी इस चर्चा में। संजीव सूद है, पूर्व एडीजी हैं बीएसएफ के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संजीव सूद जी। और इसी के साथ यश श्रीवास्तव है, प्रवक्ता है कांग्रेस के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है यश श्रीवास्तव जी। सबसे पहले आपके पास संजीव सूद जी, हम आपके पास आएंगे। और देखिए कल भी हमने आपसे बात की थी तो आपने कई महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसका जिक्र किया था। आपने कहा था देखिए पॉलिटिकली आप नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ वाकई जो कमी है उसका जिक्र आपने किया। उसके बाद से देखिए लगातार इस चीज को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो बात मैंने आपसे की थी कि देखिए स्टेट गवर्नमेंट सेंटर पर डालती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बीएसएफ के जरिए, यानी कि चलिए मान लीजिए बॉर्डर से बांग्लादेशी घुसपैठिए आ जाते हैं और बंगाल में, अन्य राज्यों में, चाहे हम असम की बात कर ले या फिर हम झारखंड की बात कर ले, अन्य राज्यों में वो चले जाते हैं, तो क्या उसके बाद उन्हें संरक्षण कौन देता है, संरक्षण पनाह कौन देता है? ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए आना और फिर वहां पर ही रह जाना और वहां की नागरिकता भी मिल जाना बहुत बड़ा सवाल है। देखिए मुझे आपको अगर मेरी आवाज आ रही हो, जी आ रही मुझे है। आपकी आवाज बीच में काफी कट कट कर मिल रही थी। तो भाई अगर अन्य शहर, अन्य स्टेट्स में जाकर कौन संरक्षण देता है, ये बीएसएफ के चार्टर में नहीं आता है। मैंने कल भी कहा था मैं इन एस्पेक्ट्स पे कोई कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं। मैं जो प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स हैं बॉर्डर सिक्योरिटी के, उन पे कमेंट करना चाहूंगा। और अगर उनके बारे में आप मेरे से जानकारी लेना चाहते हैं, की कितनी भूमिका है उस पर हम आपसे जानना चाहते हैं। मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही। आ रही है सर मेरी आवाज? अब आ रही है, बीच में गायब हो जाती। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि मेरी आवाज जो है संजीव सर के पास में जाए। लेकिन सर स्थानीय पुलिस की जो भूमिका है उस पर भी हम थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे। और इसी के साथ बॉर्डर एरिया से भी अगर एंट्री हो जाती है तो वो कैसे होती है, यहां पर कहां से कमी होती है और क्यों हो जाती है, लूपहोल्स कैसे? क्योंकि सिक्योरिटी बीएसएफ के हाथ में है, फिर कैसे पॉसिबिलिटी? देखिए स्थानीय पुलिस का जहां तक सवाल है, स्थानीय पुलिस का बॉर्डर सिक्योरिटी में रोल बहुत लिमिटेड है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो सीमाओं पर अंदर आने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स को या इन्फिल्ट्रेटर्स को या बॉर्डर क्रिमिनल्स को जब हम एप्रीहेंड करते हैं तो हम उनको पुलिस को हैंड ओवर करते हैं और पुलिस उनके ऊपर एफआईआर दायर करके उस केस को इन्वेस्टिगेट करके प्रोसिक्यूशन करती है। तो सीमाओं पर जब इनको जो पुलिस का सीमाओं के ऊपर होने वाले क्राइम में बहुत ज्यादा रोल नहीं आता है। तो दूसरा सवाल आपका मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ था, आपकी आवाज गायब हो गई थी। जी
ठीक है संजीव जी, हम आपके पास आएंगे। मेरी ऑडियो जो है वो सही से नहीं जा पा रही है संजीव जी के पास, हम चाहेंगे कि इसको थोड़ा ठीक किया जाए, लेकिन उससे पहले प्रदीप जी आपके पास हम आते हैं, वापस से हम जाएंगे अभी संजीव जी मुझे के पास। फिर आवाज नहीं आ रही है। नहीं कोई बात नहीं सर, इसको ठीक कराने की हम कोशिश करें, फिर मैं आपके पास वापस लौटूंगी। प्रदीप जी आपका रुख करेंगे। देखिए जो एक सवाल था पॉलिटिकली संजीव जी नहीं आंसर देना चाहते क्योंकि वो बीएसएफ से कनेक्टेड रहे हैं, उसको लेकर के वो पूरी जानकारी दे सकते हैं और सही से। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपसे हम थोड़ा समझना यहां पर चाहेंगे कि अगर एंट्री हो जाती है, घुसपैठ कर लेते हैं, तो फिर एक राज्य के अंदर में उन्हें संरक्षण कौन देता है, पनाह कौन देता है, वहां की नागरिकता कैसे मिल जाती है, वोटर आईडी कार्ड कैसे बन जाता है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अभी भी हर किसी के जहन में है। नमस्कार किरण जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मैं आपका ध्यान आकर्षित चाहता हूं, जयपुर में कोई संत थे और उन्होंने जो है एक अभियान चला रखा था कि वो जो आधार कार्ड बनाने वाले या जो प्रिंटिंग का काम करने वाले होते हैं, 3-4 जगहों पे डिजिटल मीडिया पे उनके विषय में वो वीडियो लाइव दिखा रहे थे कि कैसे होता है। अब अगर उन लोगों के बारे में डिटेल अगर मैं आपके कार्यक्रम तो एक किसी राजनीतिक दल को तकलीफ हो सकती है, तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन आप ये बताइए कि अभी हमारी जो पुलिसिंग व्यवस्था है वो 19वीं सदी की बहुत सारी चीजों को फॉलो करती हुई चल रही। हालांकि सुधार हुए हैं, इसमें बहुत सारे सुधार हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक युद्ध स्तर पे इस पर सुधार न किया जाए, लेकिन उसका विचार यह है कि अगर युद्ध स्तर पे सुधार कर दिए जाए तो उस नई एसओपी को अडॉप्ट करने में कितना टाइम लगेगा। प्रदीप जी सुधार किस लेवल पे हुआ है जो आप कह रहे हैं कि बहुत सारे सुधार हुए? देखिए संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है, ऐसा नहीं है कि वो चीजें वहां जाकर के रुक गई हैं। लगातार बांग्लादेशियों की घुसपैठ की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। आप देखिए कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक तकरीबन 17 ऐसे राज्य हैं जहां पर ये पूरी तरह से जा चुके हैं, घुसपैठ कर चुके हैं। यहां पर जितनी जितनी झुग्गियां आपको नजर आएंगी उन सब में ये जो है मौजूद है, उनका सीधा कनेक्शन जो है वो बांग्लादेश से है। तो सुधार कहां से है? आप किस सुधार की बात कर रहे हैं? देखिए, मैं जो पहले बात मैं रखना चाह रहा था वो पुलिस पे, जो लोकल पुलिस होती है उसकी कार्यप्रणाली कैसी है और वो किन नियमों को फॉलो करते हुए अभी भी अपने काम को कर रही है या वो फॉलो करती है। वो अभी भी कुछ हद तक अंग्रेजों के जमाने के हैं। अगर इस तरह से देखा जाए तो यूपीए का शासनकाल था 2004 से लेकर के 2014 तक, और कश्मीर जो कि बांग्लादेश से काफी दूर है, किस प्रकार से सिस्टमैटिक तरीके से उनको वहां पे ले जाकर के बसाया गया और किस प्रकार से उनको एब्जॉर्ब कराया जाता है सिस्टम में, ये देखिए बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के ये होता नहीं है। और आप देखिए इंडी गठबंधन और उसके संबंधित जहां पे भी हैं, आप देखिए, मैं उनको ज्यादा इस पर नहीं लाना चाहूंगा, लेकिन आप बताइए उनके समर्थन के लोग जब भी बांग्लादेशियों की या इस तरह की कोई बातें होती है रोहिंग्या को हटाने की या इवैक्यूएट कराने की, तो अदालत में कौन खटखटाता है? तो वो मनोबल बढ़ाने का जो इनडायरेक्ट काम होता है उसका बहुत बड़ा असर इन सब चीजों पे पड़ता है। लोकल इंटेलिजेंस या लोकल जो पुलिस है वो जब काम करना चाहती है तो उनको भी पता है कि आज की डेट में ये है तो कल की डेट में कोई और होगा, और उनको सारी चीजें सोच के काम करनी पड़ती हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसपे कि ध्यानाकर्षण होना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि लोकल पुलिस को राजनीतिक दल चेंज हो जाएंगे, सरकार बदल जाएगी, दूसरी पार्टी आ जाएगी, इस हिसाब से उनको अपना काम करना पड़ता है, कानून के हिसाब से काम करने की जरूरत नहीं है? अरे किरण जी, आप सीधे से देखिए ना कि यूपीए के शासनकाल में कौन उन्हें बचाता था, कौन। देखिए अप्रत्यक्ष जो सपोर्ट मिलता है वो बहुत भयंकर होता है ऐसे एलिमेंट्स को काम करने के लिए। आप बताइए राजनीतिक विल पावर कितनी जरूरी होती है, और वही जब इंप्लीमेंट होनी शुरू होती है तो न्यायपालिका में जाकर के कोई ना कोई पीएल पड़ जाती है। यहाँ तो एक संगठित गिरोह है जो न्यायपालिका में जी ही इसीलिए रहे ताकि वो इन एलिमेंट्स को बचा सके या देश विरोधी लोगों को साथ दे सके उनका। जी यश जी, आपसे हम चाहेंगे कि इसको लेकर के आप काउंटर करें। आप बताएं कि जो घुसपैठ है, क्योंकि देखिए हम लगातार देख रहे हैं अब तक के जो कुछ आंकड़े हैं 2000 के तकरीबन के, मैं आंकड़े यहां पर बात करूंगी, बहुत पुराना ये आंकड़ा है, डाटा है। सीधे तौर पर 2 करोड़ से के करीब जो है बांग्लादेशी घुसपैठिया जो है पूरे भारत के अंदर में, लेकिन इसमें से 1 करोड़ के करीब पश्चिम बंगाल, यानी कि मतलब पूरे के पूरा आधा जो है वो पश्चिम बंगाल में है। इनको पनाह कौन देता है, क्यों देता है, संरक्षण कहां से मिलता है? इस तरह की साजिश, इस तरह से कौन गद्दारी कर रहा है देश के साथ? क्योंकि सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सब कुछ यहां पर कहीं ना कहीं ताक पर आ चुकी है। किरण जी, आप मुझे बोलने देंगी या कल जैसे मुझे रोका जाएगा भी? सर आप शुरू करिए।
हाँ, बात शुरू करें। करने के बाद का ही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सर देखिए, देखिए, जहां अभी काउंटर इस होगा वहां जितनी से देर- करेंगे, काउंटर होगा तो वो सुनिए, जरूर सुनिए। आपसे करेंगे, हाँ, काउंटर मतलब सवाल आप होना चाहिए। करेंगी, मतलब जी। आप जरूर करेंगी, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ बोलने की। अभी हमने पूर्व एडीजी महोदय को सुना जो बीएसएफ के हैं, वो इस मामले में लोकल पुलिस की भूमिका को कुछ खास नहीं मानते, लेकिन हमारे जो विश्लेषक जी बैठे हुए हैं उनकी जो शब्दावली है, भाषा है, वो साफ साफ दिख रहा है वो क्या कहना चाहते हैं। तो मैं आपसे फिर से पूछता हूं, कल भी पूछ रहा था मैं, कि इसमें कांग्रेस पार्टी जो इस समय मतलब विपक्ष में है, उससे हम क्या चाहते हैं? क्या मीडिया को ये इतना बड़ा स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से ध्यान नहीं जाना चाहिए कि भाई इस चैनल ने इतनी मेहनत की है तो हम इस दिशा में कोई कदम उठाएं? 11 साल से क्या झांझ बजा रही है ये सरकार, जो आज भी इनके छद्म विश्लेषक आके वे यूपीए के और कांग्रेस के नाम पे रो रहे हैं बैठ के, ये कुछ नहीं कर पाए 11 साल में। नकली पासपोर्ट बन रहा है, नकली पासपोर्ट ऑथेंटिकेट हो रहा है, उससे बांग्लादेशी आदमी यहां रह के बांग्लादेश वीजा लेके जा रही है, आप ही ने बताया था कल। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन राज्यों की पुलिस जो है वो रास्ता देख रही है कि कब बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाए तो हम काम करना शुरू करेंगे। जबकि महाराष्ट्र में ये अभी जो एक एक्टर पर हमला हुआ है उसमें भी रोहिंग्या बताया जा रहा है, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सब जगह रोहिंग्या बताया जा रहा है। तो वहां सब तो बंगाल की पुलिस नहीं है, वहां तो कांग्रेस नहीं है। मजेदार बात है कि कांग्रेस की जहां जहां सरकार है वहां कहीं भी रोहिंग्या की बात नहीं हो रही। तो मैं फिर से पूछता हूं, कल भी पूछा था, यदि हम शेख हसीना को पनाह देते समय नहीं सोचते तो हम अपनी कार्यप्रणाली शेख पर हसीना शंका का, करें सर या शेख इन हसीना लोगों का पर इससे मतलब शंका कहाँ करें? बन रहा है? सर आप बार बार, कल भी आप इसी क्यों बात नहीं को बन जोड़ रहे थे, रहा है? आज भी क्यों इसी नहीं बात बन को रहा है, जोड़ रहे किरण हैं। जी? वो अगर इलीगल बात तौर पर पे- नहीं आई थी नहीं, सर, नहीं, सर वो किरण इलीगल जी, तौर पर नहीं आई थी। तो लाए क्यों आप? अगर आपको बांग्लादेश के लोग वो नहीं पसंद, प्रॉपर तो आप उन्हें परमिशन क्यों के लाए? साथ वो आई थी सर। हम बांग्लादेश के इलीगल लोगों चीजों ने की बात विरोध कर रहे करके- हैं, हम किरण इलीगल जी, चीज। सर आपने- देखिए, किरण जी, आपको आपने सरकार पे प्रदीप सिंह की कटाक्ष करना है, बातों आपको को सरकार पर निर्विरोध हमला सुना है, करना है, आप कुछ मुझे भी भी बोल सुनिए। जाएंगे, ये नहीं चलेगा ना सर। जेन्युइन नहीं, चीज ये रखिए आप ना, तय नहीं लॉजिक करेंगी बातें ना कि मैं रखिए। जो बोल रहा हूँ वो कुछ भी है या क्या है। ये तो भाई जैसे प्रदीप सिंह यूपीए के नाम पे हाय हाय कर रहे हैं, वैसे मैं कुछ तथ्य बता रहा हूं। आपने उन्हें नहीं रोका तो मुझे भी मत रोकिए, सुनिए ना भाई। जब आप मीडिया में सब लोग सब तरह के तथ्य दिखा सकते हैं तो ये भी दिखाइए, जनता विचार करके खुद तय कर लेगी सही है गलत है। मैं तो पूछ रहा हूं ना आपसे, अगर बांग्लादेश की जनता खुद शेख हसीना को भगा रही है और हम पनाह दे रहे हैं तो हम ये क्या कर रहे हैं? अच्छा, क्या ये इसे इलीगल, ना माना जाए? सुनिए सुनिए, ये इलीगल चीजों किरण में जी, आप आएगा, मुझे ये मेरी अवैध बात नहीं पूरी सर, करने सवाल दीजिए। सुनिए सर, ये अवैध घुसपैठ में आएगा, ये घुसपैठिए में कहलाएगा? अवैध घुसपैठ नहीं, शेख में हसीना का आएगा। आना अवैध कहलाएगा? आप आप बताइए, मुझे तो बताइए, किस अवैध टॉपिक पे नहीं बात हो रही है? कहलाएगा तो किस आप टॉपिक मुझे पे बात बताइए। हो रही है सर, वो बताइए। आप मुझे नहीं, किरण जी आप मुझे मत घुमाइए। आपने उनसे नहीं पूछा कि आप यूपीए की बात आज क्यों कर रहे हैं? 14 सर साल यूपीए बाद? की बात उन्होंने घुसपैठ को लेकर के की है। आप हाँ, तो सरकार मैं पे भी सवाल घुसपैठ कर को सकते हैं, लेके कर रहा घुसपैठ को हूं। लेकर के। हमने- शेख हसीना का सुनिए, सवाल घुसपैठ से कनेक्टेड हमने कैसे है ना तो- सर? ये किरण मैं जी, जानना चाहती हूँ आपसे। नहीं, मैं आपको जो बताना चाहता हूं पहले वो सुन लीजिए। मैं तारतम्य जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। शेख हसीना के साथ क्या अंडरस्टैंडिंग है वो सरकार से पूछना पड़ेगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आपसे मेरा मतलब है कि इस पूरे तारतम्य में मेरा जो सवाल है वो सिर्फ इतना है कि हम क्या केवल यहां बैठ के इस प्रोग्राम में चर्चा करते रहेंगे? क्या सरकार को टैंजिबल एक्शन नहीं लेना चाहिए? चलिए ठीक है, छोड़ देते हैं शेख हसीना, लेकिन इस मामले में जिसके पास अधिकार है काम करने के, ठीक है, वो प्रदीप जी नहीं कुछ कर रहा कहना है। चाह रहे हैं, आप ही की किरण बात जी, का मुझे जवाब मेरी देना बात चाह पूरी रहे हैं। कहने दीजिए, आपने मुझे नहीं बोलने दिया, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए सर प्लीज। आप ही से तो मेरा इतनी देर से निवेदन है। बात कर रही हूँ सर। नहीं, ठीक है, आप अपनी मुझे बात मेरा रखिए वाक्य सर, तो जल्दी पूरा से। करने दीजिए। क्या इसे इस बात की खीज नहीं माना जाए कि अमेरिका को जो करना था उसने कर दिया, ये कुछ नहीं बोल पाए इसलिए उन्होंने यहाँ पे नया नाटक चालू किया है बीजेपी वालों ने? क्या नहीं माना जाए इसको? अमेरिका को हमारे 18,000 लोगों को भेजना था, वो भेज रहा है। हमने क्या कर लिया विश्वगुरु कहला के खुद को? और बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए भी हम 11 साल से सुन रहे हैं। क्या कर रही है ये सरकार? सर 11 साल से नहीं, उससे पहले से ही सुन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए 11 साल से तो ये है ना, क्या कर रहे हैं ये 11 साल से? ठीक है, 11 साल का जवाब। और प्रदीप जी जो है उसके पहले का जो है सवाल वो उठाएंगे, यही चलता रहेगा, ब्लेम गेम और सारी चीजें आएंगे। प्रदीप जी आपके पास, संजीव जी आपके पास भी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले हम एक रिपोर्ट जो है अपने दर्शकों को दिखा दें कि हम अपनी चर्चा इसी तरह से जारी रखेंगे। लेकिन आपको ये हम बताएं कि इंडिया डेली के स्टिंग ऑपरेशन को लेकर के कल की पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम ने तारीफ की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आंतरिक सुरक्षा पर सबको एकजुट होना चाहिए। उन्होंने साफ साफ कहा है कि यह देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में सुरक्षित है। बांग्लादेशियों के मुद्दे पर पीएम मोदी जो फैसला लेंगे वो देश हित में होगा। प्रमोद कृष्णम ने से खुद मैंने बातचीत की है।
आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठिए जो है आज के वक्त में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है किसी भी देश के लिए, सबसे ज्यादा भारत में उनकी एंट्री हो रही है और इसको लेकर के हमने देखा है कि राजनीतिक दलों की तरफ से लगातार इसको लेकर के बयानबाजी का दौर चला है। कितनी बड़ी प्रॉब्लम के तौर पे, मुसीबत के तौर पे आप देख रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों को? देखिए, बांग्लादेश आजकल ISIS के रास्ते पे जा रहा है और जो बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, हिंदुओं को कत्ल किया गया, मंदिरों को तोड़ा गया, तो ये भारत के साथ साथ पूरे सनातन पे हमला है। अब उनकी कोशिश रहती है कि कैसे भारत को कमज़ोर किया जाए। भारत एक ऐसा देश है और यहाँ जो सरकार है वो बहुत ही ताकतवर सरकार है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है ये बहुत ही मजबूत सरकार है और बांग्लादेश को ये मालूम है। तो वो क्या है कि सामने से तो आप नहीं लड़ सकते हो, तो भीतर घात किया जाए। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश का जो सिस्टम है, पूरा गवर्नमेंट का सिस्टम है, वो इस कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व है। जी, क्या लग रहा है कि एक राजनीतिक संरक्षण भी इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को जो है वो मिलता है, इसी वजह से लगातार उनकी संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है? क्योंकि हमने झारखंड चुनाव में देखा, हम महाराष्ट्र की बात करें, दिल्ली में आज के वक्त में ये सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। देखिए, सिर्फ दिल्ली नहीं, बम्बई नहीं, हर जगह बांग्लादेश के लोग घुस रहे हैं और उन्हें घुसाया जा रहा है। लेकिन उससे भी बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि जो भारत में विपक्षी नेता हैं वो उनके समर्थन में हैं। तो जो राजनीतिक संरक्षण की आप बात कर रहे हैं, अगर आप मोदी के खिलाफ हैं, मोदी की मुखालफत करते हैं, नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं, तो आप कोई भी हैं, आप पाकिस्तानी हैं तो भी विपक्ष के प्रिय हो जाएंगे, आप बांग्लादेशी हैं तो भी आप राहुल गांधी जी के प्रिय हो जाएंगे। तो इन्हें राजनीतिक संरक्षण दबा हुआ नहीं है, खुल्लम खुल्ला है। आप अभी नरेंद्र मोदी जी को गाली देना शुरू कर दीजिएगा, बांग्लादेश जिंदाबाद कहना शुरू कर दीजिएगा, अखिलेश यादव, राहुल गांधी सब आपका सपोर्ट करेंगे। ये इस देश के लोकतंत्र की विडंबना है, क्या करेंगे आप? ये बहुत बड़ी विडंबना है। अर्थव्यवस्था पर कितना बड़ा असर जो है इनका पड़ेगा अगर, क्योंकि देखिए संख्या बढ़ेगी तो डेफिनेटली इसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, अर्थव्यवस्था पे भी असर पड़ेगा, देश की यूनिटी पे, इंटीग्रेशन पे, नेशनल इंटीग्रेशन पे, देश की सुरक्षा से जुड़ा मसला है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा रोज चिल्ला रहे हैं और भारत के गृह मंत्री अमित शाह भी बोल रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि भारत के गृह मंत्री जी और भारत के प्रधानमंत्री जी के साथ साथ इस देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को राष्ट्रीय एकता के लिए एक साथ बैठ के चिंतन करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने उसके बाद देखिए कि अमेरिका ने सीधे तौर पे ये कह दिया है कि जो अवैध लोग, मतलब यानी कि इलीगल तौर पे आते हैं, उनके निर्वासन की एक योजना बनाई जा रही। तो क्या ऐसे ही भारत को भी कुछ स्टेप उठाने की जरूरत है? आप क्या यहाँ पर बोलना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि भारत नरेंद्र मोदी जी के हाथों में पूर्णतः सुरक्षित है और भारत के हित में ही वो कोई फैसला लेंगे। तो ये काम भारत की सरकार के ऊपर छोड़ देना चाहिए। भारत की सरकार जो फैसला लेगी, हमारा विश्वास है कि वो भारत के हित में लेगी, भारत की जनता के हित में लेगी, भारत को सशक्त बनाने के हित में लेगी। तो मुझे लगता है कि और इस पे चिंतन चल रहा होगा, इस पे चिंतन चलना भी चाहिए। लेकिन इतना यकीन, इतना विश्वास देश के लोगों को होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी के हाथों में देश पूरी तरह सुरक्षित है। हमला जरूर हो रहा है, चारों तरफ से षड्यंत्र हो रहे हैं और षड्यंत्र बाहर से नहीं हो रहे, अंदर भी हो रहे हैं, लेकिन मुझे नरेंद्र मोदी पे पूरा भरोसा है कि उनके हाथों में देश सुरक्षित है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इंडिया डेली के साथ ये खास बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर सुना आपने पीठाधीश्वर कल्कीधाम के प्रमोद कृष्णम जी को। उन्होंने सीधे तौर पर इसे कहा है कि बहुत बड़ी चुनौती है, इसको लेकर के चिंतन होना चाहिए और चिंतन हो भी रहा होगा और कलेक्टिव यहाँ पर स्टैंड लेने की जरूरत है। चलिए चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और सीधे हम प्रदीप जी का रुख करेंगे, उसके बाद मैं संजीव जी के पास जाऊंगी। प्रदीप जी, आप कुछ अपनी बात को रखना चाह रहे थे, अपनी बात को रखिए, उसके बाद संजीव जी का रुख करते हैं। जी देखिए, सुनने के चाहूंगा, मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, जब सरकारें, किसी भी देश की सरकारें, चाहे भारत की सरकार हो या किसी भी देश की सरकार हो, जब भी उसमें पंगुपना आता है या जब भी उसमें कोई लिटेंसी आती है तो उसका तुरंत असर नहीं दिखाई देता है, उसके दूरगामी परिणाम होते हैं। आज अब विपक्ष को बुरा लगता है, लगे, लेकिन मेरे पास वो साक्ष्य है, मैंने वो देखा है। सर, सरकार कब से है सर? बीजेपी की सरकार कब से है? केंद्र में सरकार 2014 से
और कितना वक्त चाहिए किरण जी 2006 में अगर किसी को लाके बसाया गया और 2008 में उसके बच्चे हो गए और बच्चे अब बड़े हो गए हैं, तो वो क्या कहे जाएंगे? भारतीय कहे जाएंगे या बांग्लादेशी कहे जाएंगे? दिल्ली के ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां पे संगठित तौर पे बांग्लादेशियों को ले आके बसाया गया। मैं शीला दीक्षित जी का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन 3 वर्ष का उनका जो 15 वर्षों तक उन्होंने दिल्ली में शासन किया, तो मुझे उम्मीद है कि सब दर्शक समझ रहे होंगे कि इसके पीछे की कहानी क्या है। और उदंडता करके और थोड़ा सा ज्यादा बोल करके कोई 5 ग्राम समझदार हो सकता है, लेकिन उसका कोई इम्पैक्टफुल असर नहीं पड़ता है देखने सुनने समझने वालों के लिए। मैं बड़ी सफाई से कह रहा हूँ इसको। ठीक है, ये मैं आपके पास आऊंगी। संजीव जी काफी देर से वेट कर रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगी। संजीव जी, आपसे जो हम लगातार बात करते हैं, जो हम अपने स्टिंग ऑपरेशन में भी दिखा रहे हैं, देखिए कितनी आसानी के साथ, और कीमत क्या है? 200, 500, 1000, यानी जैसी संख्या और जैसे अगर महिला है तो ज्यादा। तो ऐसे में और नदी के जरिए जो है, जंगलों के जरिए जो है, ये पूरे घुसपैठ जो है वो हो रहे हैं, इस तरह की योजनाएं बनाई जा रही है, केले के पेड़ का इस्तेमाल हो रहा है, ये इतनी आसानी से हो जा रहा है। बहुत बड़ी अगर कहें तो एक सेंधमारी यहां पर हो रही है, बहुत बड़ा लूपहोल है। जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी ऑब्स्टिकल अगर जमीन पर लगाया गया है, उसका 100% फुल प्रूफ हो, इसकी कोई गारंटी कहीं पर भी नहीं दी जा सकती है। नंबर 1। नंबर 2, जब सीमा सुरक्षा बल को सीमाओं की रक्षा के लिए लगाया गया है, तो ये जरूरी है कि सीमा सुरक्षा बल को पूरे रिसोर्सेज, उनकी पूरी ट्रूप्स वहां पर हमेशा निगरानी के लिए तैनात रहनी चाहिए। ऐसा देखा गया है कि सीमा सुरक्षा बल का काफी ट्रूप्स कई बार बड़े लंबे समय के लिए सीमाओं से विड्रॉ करके इंटरनल सिक्योरिटी में लगा। आज की डेट में भी बीएसएफ की लगभग 140 बटालियन, जिसका मतलब है कि तकरीबन हमारी 20 बटालियन, जो कि हमारी फोर्स का 10% है आज की डेट में भी, और ये ज्यादातर ईस्टर्न बॉर्डर से ही उठाई गई हैं, उनको मणिपुर में डिप्लॉय किया गया है। पिछले साल जब चुनाव हुए हैं, तो लगातार 6 महीने के लिए लगभग 50%, जिसमें मणिपुर की में डिप्लॉयड भी हैं, कुछ इलेक्शन में लगे हुए हैं, कुछ अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में लगे हुए हैं, वहां से हमारे लगभग 50% ट्रूप्स विड्रॉ करके इनमें बड़े प्रोलॉन्ग्ड समय के लिए, 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए वो लोग वहां पर। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक है कि सीमाओं पर निगरानी डाइल्यूट हो जाएगी, और जिसका फायदा ये लोग करेंगे, ये लोग जरूर उठाने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज एक और है, और कई पॉइंट्स हैं, पर मैं इसके बाद आपका दूसरा सवाल ले लूंगा। जी सर, एक सवाल और मैं जोड़ दूं सर, एक सवाल और जोड़ देती हूँ सर। ये मुझे थोड़ा इलेक्शन टाइम को भी समझना है। क्या इलेक्शन टाइम में भी बॉर्डर पर जो सिक्योरिटी है, क्या वो भी कहीं ना कहीं इधर उधर डाइवर्ट उनको किया जाता है, उनको हटाया जाता है इलेक्शन टाइम में? ऐसा कुछ होता है क्या? मैं आपको बता रहा हूं ना कि इलेक्शन के समय में जो मेरी सूचना है, काफी नफरी वहां से निकाल कर इलेक्शन की ड्यूटीज में, इलेक्शन को प्रॉपरली कराने में लगाई जाती है। और ऐसा ज्यादातर हमारे ईस्टर्न बॉर्डर से होता है, क्योंकि वेस्टर्न बॉर्डर्स को हमारे ज्यादा प्रायोरिटीज दी जाती है, वहां पर ज्यादा खतरा महसूस, मेरे विचार में ईस्टर्न बॉर्डर्स पर ज्यादा खतरा है। तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसी में एक विचार पैदा होना चाहिए कि हमें ईस्टर्न बॉर्डर्स को ज्यादा तरजीह देने की आवश्यकता है, ज्यादा प्रायोरिटी देने की आवश्यकता है, जिससे वहां पर सिक्योरिटी कभी भी डाइल्यूट ना हो सके। दूसरी चीज ये है, कल मैं जब था तो किसी ने कहा कि 80% सीमा पर फेंसिंग हो गई है, या 80% या कुछ फिगर, जबकि ऐसा है कि लगभग 25% सीमाओं या उससे भी ज्यादा
तकरीबन 1200 किलोमीटर की सीमा पर फेंसिंग की ही नहीं जा सकती है। रिवराइन बॉर्डर है, जहां ब्रह्मपुत्र का इलाका है या बे ऑफ बंगाल में इलाका है, जहां पर फेंसिंग लग ही नहीं सकती है। तो इन जगहों पर सीमा सुरक्षा बल की वाटर विंग डिप्लॉयड है। वो जितना उनसे हो सकता है वो काफी कोशिश करते हैं, परंतु इन रिवराइन इलाकों को, जहां पर बहुत लंबे चौड़े ब्रह्मपुत्र का जो पार्ट है वो बहुत बड़ा चौड़ा है, जहां पर लाइटिंग नहीं की जा सकती, जहां पर सिर्फ एक बोट पेट्रोल हम कर सकते हैं। तो ऐसे इलाकों को वहां पर एक्सप्लॉइट किया। पॉलिटिशियंस के लिए ये बहुत आसान है कि दूसरे को ब्लेम कर देना और ये कर देना। कांग्रेस, बीजेपी, तृणमूल, बीजेपी ये करते रहेंगे, परंतु जो जमीन पर प्रॉब्लम्स हैं उनको, और फिर वहां पर एक टाउट्स का पूरा जाल बिछा हुआ है, जो टाउट्स उनके बांग्लादेशियों के आने से, और ये टाउट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, सभी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड है। ठीक है सर। और वो जो के वहां पर उनके बांग्लादेशियों बहुत बहुत के शुक्रिया सर आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त की कमी है और इसी के साथ फिलहाल एक छोटी